ہمیں اور آپ کو یہ سعادت ان ایام میں عطا فرمائی ہے بتوفیق اہل بیت علیہ السلام، بتوفیق الہی کہ ہم اور آپ مل کر اس شب جمعہ میں تعزیت و تسلیت بارگاہ وجود فرزند زہرا یوسف زہرا منتقم کربلا حضرت حجت خدا علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد ان کی خدمت میں پیش کر سکیں اس دعا کے ساتھ کہ ہماری یہ انتہائی قریب اور ٹوٹی پھوٹی عبادات بارگاہ احدیت میں شہزادی دو عالم کے وسیلے سے قبول اور منظور ہو جائیں اور آپ سب یہاں سے کوثری سیرابی کے ساتھ واپس ہر برس بار بار ہر بار صحت و سلامتی حضور کے ساتھ ہمیں اور آپ کو یہ فرش عزائے شہزادی دو عالم جو کہ درۃ النورا فضل الخضرا انسیہ خورا دختر مصطفیٰ جان مرتضیٰ دل بند جگر گوشہ خدیجۃ الکبریٰ روح زینب صدیقۃ الصغریٰ سالم زہرا خاتون جنت شہزادی دو عالم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ اور پھر آج کی شب جو کہ شب جمعہ بشارتوں کی شب، دعا کی شب، اپنی قبولیت دعا کے لیے بارگاہ احدیت میں دست سوال دراز کرنے کی شب، استجابت دعا کے لیے اہل بیت علیہ السلام سے متوسل ہونے کی شب، بہت بہت پر برکت شب، کیونکہ ہم اور آپ اس شب میں انتظار سے جڑ جاتے ہیں، منتظر بھی ہیں، انتظار بھی کر رہے ہیں، اور اس اجلی روشن جو روز جمعہ طلوع ہونے والی ہے جس میں یوسف زہرا منتقم کربلا وجود مسکراہٹ فاطمہ ہے، اس مناسبت سے اس شب کے بے پناہ فضائل ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ شب جسے شب جمعہ کہا جاتا ہے، جس کے فضائل کا اظہار، جس کے فضائل کے اظہار کے لیے ہم روز جمعہ کا سہارا لیتے ہیں، کیونکہ روز جمعہ جو کہ سید و سردار دن ہے، سید کی آمد کا دن ہے، سید سے جڑ جانے کا دن ہے، سید سے منسلک دن ہے، اور ہم آپ خوشحال نصیب ہے کہ سیدۃ النساء العالمین کی مجلس میں اس سید کو یاد کر رہے ہیں جو روز جمعہ جیسے سید و سردار دن میں ظہور کرنے والے ہیں۔ اور پھر چونکہ اس سید الشہداء کی مجلس جب بھی کبھی مجلس بنام حسین ابن علی منعقد کی جاتی ہے، کیونکہ خاص طور پر شب جمعہ شہزادی دو عالم جاتی ہیں خصوصاً کربلا معلیٰ کی جانب، تو تین اعتبار سے کہ ہم اور آپ اس وقت خوش نصیب ہیں، ایک جانب اپنے دل کو، اپنے وجود کو ہم نے کھول دیا ہے حرم حضرت ابو عبداللہ کے لیے، دوسری جانب فرش عزائے شہزادی دو عالم پر ہیں، استجابت دعا کی شب، قبولیت دعا کی شب، خود بہت بہت فضائل میں گھری ہوئی اس نورانی شب کہ جس میں ہم اور آپ منتظر ہو رہے ہیں اس سید و سردار دن کے، اس کے روز جمعہ کے فضائل چونکہ شب جمعہ ہی سے نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت ایک روایت ہے جو ہمیں روز جمعہ سے جوڑ رہی ہے، کیونکہ ہر روز شب جمعہ، ہر ہفتے جب شب جمعہ آتی ہے، اور اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، اتنا دل فریب مذہب ہے کہ کام کرنے سے پہلے یعنی ہمیں عمل سے پہلے اجر بتا دیتا ہے، ہمارے اس عمل سے پہلے اجر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ثواب کیا ملنے والا ہے، اور ثواب اگر نور علی نور ہو جائے جب مسلم عبادت کروں تو اس کا لطف بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ روز جمعہ کے فضائل کے اظہار کے لیے شب جمعہ ہی سے تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور شب جمعہ کیا ہوتی ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ شب جمعہ میں
मुनादी निदा देता है, यानी रोजे जुमेरात में मुनादी निदा दिया करता है कि इस अर्थ पर कि जो रिस्क का तलबगार हो। और रिस्क आपको मालूम है ना कि ज्यादा नहीं होता, ज्यादा पैसा नहीं होता, रिस्क में आ जाता है। हमारा रूहानी है, हमारा जिस्मानी है, हमारी हमारा हम सफर हमारा साथी भी रिस्क है, हमारे पास पना है जिसमें इस्लाम इतना खूबसूरत है कि हमारे मरहूमीन से हमारे रिश्ते को कभी तोड़ने ही नहीं देता। और आपको मालूम है कि आज की शब में हमारे मरहूमीन जो कि जैसे हम कहीं तैयार होकर जाते हैं और या कोई हमारे घर आ रहा हो तो हम तैयारी के साथ उसका इस्तकबाल करते हैं, क्योंकि मुस्तहब है कि मेहमानों का इस्तकबाल बहुत अच्छे तैयार होकर किया जाए ताकि उनको एहसास हो कि उनकी इज्जत और तकरीम में इजाफा किया गया है। तो जब वो हम शबे जुमा कुछ तोहफा उनकी जानिब भेजते हैं, उससे पहले कि वो तोहफा उन तक पहुँचे वो बहुत तैयार होकर बहुत सज धज कर हमारा इंतजार करते हैं उस तोहफे का जो आपकी जानिब से उन तक पहुंचने वाला है, और वो तोहफा जो 70,000 गुना ज्यादा करके उन तक पहुंचता है। और आपको मालूम है जो नहीं पहुंचाते तो जब वो गमगीन होते हैं तो जिनके पास जाता है वो उनको बशारत देते हैं, खुशखबरी देते हैं कि कुछ हरज नहीं, तुम इस सवाब में हमारे शरीक हो जाओ। क्या हुआ जो तुम्हारे घर से कोई तोहफा नहीं आया, लेकिन खुशाद नसीब है कि जिसके मरहूमीन तक आपकी जानिब से जब तक हम हयात हैं हमारी जानिब से कोई तोहफा शबे जुमा में उन तक पहुंचता हो, चाहे वो एक सलावात ही क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी हो जो आपकी जानिब से वो नेकी का कोई अमल ही क्यों ना हो। पैगंबर अपने असहाब से इरशाद फरमाते थे ना कि तुम सदका क्यों नहीं देते, तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह हमारे पास कहाँ इतने पैसे हैं कि हम सदका दे सकें। आपने इरशाद फरमाया कि एक मुस्कुराहट किसी को दे दो, ये मुस्कुराहट
सदका बन जाती है। इसमें तो कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे, आपकी सबक से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है, उस मुस्कुराहट का तबादला वो सदका है जो कितना खूबसूरत होकर संवर कर निखर कर जिसका सवाब भी सदका जारिया की सूरत में हमारे मरहूमीन तक पहुंच जाता है। तो जहाँ एक जानिब हमें अपने मरहूमीन को याद करना है, और जब बात अपनी कब्र की आती है, अपनी लहद की आती है, तो फिर तो मजा ही आ जाता है ये सोचकर कि लहद में तस्किराए बुतराब कर देंगे, लहद में तस्किराए बुतराब कर देंगे, सवाल कोई भी हो लाजवाब कर देंगे, लहद में तस्किराए बुतराब कर देंगे, सवाल कोई भी हो लाजवाब कर देंगे। और गुनाहगार बहुत हैं फरिश्तों हम लेकिन, गुनाहगार बहुत हैं फरिश्तों हम लेकिन, अली को आने दो, अली को आने दो, सारा हिसाब कर देंगे। शब-ए जुमा में हम और आप बेदार हैं, बहुत अपने इस फख्र पर, इस शरफ पर नाज कर रहे हैं, झूम रहे हैं। बशारतें देने वाली शब है, खुशखबरियाँ देने वाली शब है, हमारे वजूद को उजालने निखारने वाली शब आ गई है, जिसको शब-ए जुमा कहा जाता है। इस मुनासिबत से आज मैं आपके लिए इतना खूबसूरत तोहफा लेकर आई हूँ जो आप सबके पास है और आपने उसको थामा हुआ है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम जो चीज़ हमारे पास होती है और जब बहुत मुख्तसर होती है तो हम उसकी अहमियत पर इतना अंदाज़ा इस एतबार से नहीं रखते। हम ये समझते हैं कुछ नया ऐसा पढ़ने को मिल जाए जो लंबा सा हो और जो ज़रा मुश्किल सा हो, तो यकीनन फिर उसका सवाब ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि नई नई चीज़ों को ऐड किया जाए, बल्कि जो आपके पास है, जो हमारे पास है, वो खुद इतना कीमती है। खुदा की कसम हम उन बातों से आगाह ही नहीं हैं, उन फजाइल से वाकिफ ही नहीं हैं जो कुछ के हमारे पास है, हमारे हाथों में है, आप सबके हाथों में है, आपने थामा हुआ है, मगर इसके फजाइल से हम आगाह नहीं हैं, इसकी बुलंदी से हम आगाह नहीं हैं। और आज चूँकि मिशकात हिदायत के ज़ैल में हम और आप उस तंवीर, उस चिराग, उस नूर, उस वजूद फातिमा तो ज़हरा सैयदा कौनैन, सैयदा आलमियान की मजलिस में रोज़ाना हमें कुछ ना कुछ उठाना है, एक लफ्ज़ ही सही हमें लेकर यहाँ से अपनी गिराह में बांध कर जाना है। तो उसके लिए जिस बहुत ही खूबसूरत तोहफे का मैंने इंतखाब किया है, वो तोहफा इतना नूरानी है, इतना अजीम है, इतना बाबरकत है। पहले सुनते हैं उसके फजाइल और फिर उस तोहफे को दर्ज करते हैं, ताकि हमें बड़ा मजा आए ये सोच के कि वो तोहफा कितना नूरानी है, कितना अजीम है, कितना मुश्किल कुशा है, जो हमें और आपको लिबास से नूरानी, लिबास से जन्नती पहना रहा है। इसकी पहली फजीलत तो यही है कि मुझे और आपको हमारी मुश्किल कुशाई कर रहा है, हमें लिबास बहिश्ती पहना रहा है, और हमें उन लोगों में शामिल कर रहा है, पता है किसमें, जो जाकिरीन बन जाते हैं। और सिर्फ जाकिरीन नहीं, जाकिरीन अल्लाह कसीरन कसीरा, अल्लाहु अकबर, जाकिरीन अल्लाह कसीरन कसीरा में शुमार कर रहा है, हमें और आपको बेदार वक्तों में शुमार कर रहा है, गाफिलों की फहरिस्त से हमारा नाम काटा जा रहा है। कितनी खूबसूरत बशारतें इस तोहफे की, इस नहले की। और ये तोहफा इतना खूबसूरत तोहफा है जिसका आखिर में जो एक मामला हो रहा है अल्लाह का हमारे साथ, वो इतना ज्यादा करीमाना है, इतना रहमत से भरा हुआ है कि मैं और आप अगर इसकी तिलावत करके सो जाएं, इसको पढ़कर सो जाएं, तो पता है क्या होगा, मैं और आप तो सोएंगे पूरी रात मीठी गहरी नींद, और हमारे लिए खुदावंद मुतआल एक मलक को खल्क फरमाएगा। उस मलक का काम होगा मेरे और
और आपके लिए इस्तग़फ़ार करना। कभी आपने ऐसा करीमाना मामला किसी के साथ सुना है? जैसा इस वज़्न में आने वालों को तोहफा मिलता है, जैसा इस वज़्न में आने वालों को सैराबी शादाबी मिलती है, और ऐसे तोहफे आपको सिवा खानदान अहले बैत अलैहिस्सलाम के और कहीं नहीं मिलते। और अहले बैत की खुसूसियत ये भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो इनको अता फरमाया है, अगर वो अताए रब्बानी जो खास अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए हो, अगर वो चाहें तो मखसूस कर लें अपने लिए, लेकिन उनकी शान करीमी ये है कि बड़ी फयाजी के साथ, बड़ी सखावत के साथ, बड़ी शान करीमी के साथ वो अपने बंदों में, अपने चाहने वालों में उसके सवाब को इस तरह फैला देते हैं, उसको इस तरह तकसीम कर देते हैं, उसको इस तरह आम कर देते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इसको इतनी कम अहमियत देते हैं, हम इसको गोया कि जानते ही नहीं हैं, हम इसको इतनी आसानी से पढ़कर गुजर जाते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ दरूद बहुत 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 ज़्यादा राइज है। हमें मालूम है कि फ़ज़ाइल में दरूद क्या है। दरूद खुद एक मुश्किल कुशा है। सलावात पढ़ना, अपनी ज़बान पर जारी रखना खुद एक मुश्किल कुशाई बन जाता है। दरूद खुद एक इतनी बड़ी ताकत है जिसका हमें और आपको अंदाज़ा ही नहीं है। हमने हर रोज़े जुमा, हर नमाज के बाद, हर शबे जुमा, हर वक्त पढ़ा अल्लाहुम्मा कुल्ले वली, लेकिन हम जानते ही नहीं है। हम बस पढ़ के गुजर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि इसके फ़ज़ाइल कितने गहरे हैं, हमें मालूम ही नहीं है। क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम के घर का हर फर्द बाबुल हवाइज है। अहले बैत अलैहिस्सलाम के घर का हर फर्द मुश्किल कुशा बन जाता है, और जो वो दे उसे थाम लेने में जो लुत्फ आता है, जो मज़ा आता है, और जो सवाब दर सवाब मिलता चला जाता है, उसकी अहमियत से हम और आप आगाह नहीं है। लेकिन ये नहला अरबी ज़बान में कहते हैं गिफ्ट को, तोहफे को, ये तोहफा जो हमें आइम्मा अलैहिस्सलाम की जानिब से मिल रहा है, और मेरे और आपके इमाम जिनका के पास एक लक़ब है, जिनको सादिक कहा गया है, यानी छठे इमाम सादिक आले इमाम इरशाद फरमा रहे हैं कि नहला इलाही है, अल्लाह की जानिब से तोहफा है। फ़कत तोहफा नहीं है, अल्लाह की जानिब से वो हदिया है, वो तोहफा है, वो गिफ्ट है, वो बशारत है, वो नूर है, वो बाबरकत कलमात हैं कि जिनको थाम लिया जाए तो हम और आप ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन कसीरा, ये बहुत बड़ा शरफ है कि हम गाफिलों से हट जाएं, बेदार वक्तों में आ जाएं, कब्र नूरानी हो जाए, वजूद नूरानी हो जाए, लिबास नूरानी हो जाए, हिल्लाए बहिश्ती हमें नसीब हो जाए, और फिर ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन कसीरा की मंजिल पर आ जाए। तो इमाम इरशाद फरमा रहे हैं कि ये वो तोहफा है जो इसको थाम लेगा, उसके लिए बशारतें ही बशारतें, खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं। लेकिन सोचिए तो सही कि इसके बातिन में ऐसा क्या है कि जो हमें नसीब हुआ है। तो बशारतें हैं, खुशखबरियाँ हैं, नूर है, ये अज़कार कैसे अज़कार हैं जो हमें ज़मीन से उठाकर अर्श पर पहुँचा रहे हैं, जो हमारी ज़िंदगी को नूरानी बना रहे हैं, जो हमारी मुश्किलों को हल कर रहे हैं, जो हमारे कब्र के अंधेरे को वो नूर में तब्दील कर रहे हैं। हम सो रहे हैं आराम से और हमारे लिए इस्तग़फ़ार हो रहा है, यकीनन उसके बातिन में कुछ ऐसी गहराई तो है ना। ये दिया किसने है किसको? ये पैगंबर इस्लाम ने अपनी उस बेटी को अता फरमाया है जिस बेटी की मजलिस में मैं और आप मौजूद हैं। और वो बेटी कौन है? जो बिज़अतुर रसूल की मंजिल पर पाई है, जो बहजते क़ल्ब मुस्तफ़ा होने का शरफ़ रखती है, यानी जिसको पैगंबर इस्तश्माम करते हो, सूंघते हो, कि जिसकी खुशबू बहिश्ती खुशबू है, उस वजूद को वो तोहफा पैगंबर इस्लाम दे रहे हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको अता फरमाया है। अब आप सोचेंगे तोहफा किसको कहते हैं? आप बहुत सारे तोहफों को जिंदगी भर में लेन देन करती हैं तोहफों का, और तोहफे देने का उसूल क्या होता है कि यकीनन तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है, और दोस्ती बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, और मोहब्बत से तोहफा दिया जाता है किसको? या तो तोहफा दिया जाता है अपनी हैसियत के मुताबिक या सामने वाले को देखकर कि जैसे आपके दिल में उसके जज्बात हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैगंबर इस्लाम को तोहफा दिया है
اور کیا کہوں کیسے کہوں کہ وہ ذات لم یزل ولا یزال ہے، وہ ارادہ کن فیکونی کا مالک ہے، وہ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے، اس کو سمجھا اور سمجھایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ ہر تعریف سے بالا تر ہے۔ ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، جبھی تو ہمیں کہا گیا ہے نا کہ الحمدللہ رب العالمین، جس نے صبح کو 4 مرتبہ کہا اس نے دن کا شکریہ ادا کیا، جس نے شام کو 4 مرتبہ کہا اس نے شام کا شکریہ ادا کر دیا، پھر بھی شکریہ کہا ادا نہیں ہوا، الحمدللہ کما ہوا اہلو کہا تو بس تم نے اپنی زبان میں یہ اظہار کر دیا کہ تیری ایسی حمد جس کا تو اہل ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس کا اہل ہے، اس لیے کہ امام صادق سے کسی نے پوچھا کہ اللہ اکبر کے کیا معنی ہے، آپ نے کیا اس کے معنی ہے کہ اللہ ہر شے سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، اس طرح سے تم نے اس کو شے میں محدود کر دیا، وہ لا محدود ہے، حد و حصر سے بالا تر ہے اس کے فضائل، اس کی تعریف کو سمجھنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، ہر تعریف سے بالا تر ہے، عقلیں جس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز ہوں، بڑے بڑے سرکش جس کی ہیبت سے تھر تھراتے ہوں، جس کے سامنے ہر عظیم مطیع نظر آتا ہو، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب سوچئے کہ وہ تحفہ دے رہا ہے کس کو؟ سامنے وہ ہے جو مقصود گوہر کائنات، جس کے لیے کیا کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ساری کائنات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنی چاہت کے ساتھ اس نبی کا سراپا سجایا ہے، ایسا کوئی اور کائنات میں نظر آتا ہی نہیں ہے۔ مقصود کائنات، گوہر کائنات، اللہ کے امین، اس کے نجیب، اس کے حبیب، اس کے محبوب، اس کے چنے ہوئے، اس کے پاک کردہ، اس کے خالص، اس کی مخلوق میں سے بہترین یعنی سب کچھ ہے، وہ نچھاور کر دیا ہے اس ذات گرامی قدر پر، اس ذات کے لیے ساری کائنات کو خلق فرمایا۔ لیکن اتنی پیاری حدیث قدسی میری زبان پر آ گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب سے کہ آپ مقصود کائنات ہیں، آپ گوہر کائنات ہیں، میں کائنات کو خلق نہ کرتا اگر آپ مقصود نہ ہوتے، اور اگر علی مشیت ارادہ الہی میں نہ ہوتے تو آپ کو کائنات کو خلق نہ کرتا۔ لیکن نہیں نہیں نہیں، اگر وہ وجود جس میں آپ ہیں، جو رزقت الرسول ہے، جو مقتن الرسالہ ہے، جو قرۃ النورہ ہے، جو بطول عذرا ہے، جو انسیہ ہورا ہے، یعنی وہ انسانوں سے بھی بلند ہے اور حور سے بھی بلند مرتبہ رکھتی ہے، اگر وہ وجود ارادہ مشیت الہی میں نہ ہوتا تو آپ دونوں کو خلق نہ فرماتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کنیز خاص خدا ہے۔ کنیز خاص خدا کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کیا سمجھا؟ کنیز ہے کنز کہتے ہیں خزانے کو، جس کے ہاتھ میں کائنات کا خزانہ ہو، وہ چاہے تو کائنات کی تنابوں کو کھینچ لے، جس کے ہاتھ میں کائنات کا خزانہ ہے، جس کے بیٹے کے آنے پر زمین اپنے خزانے اگل دے گی، اسے کہتے ہیں کنیز خاص خدا، خاتون جنا، اسی لیے سیدۃ النساء العالمین ہر زمانے کی سیدہ ہیں، ہر زمانے کی سید و سردار ہے۔ تو جب ان کو دے رہا ہے وہ تحفہ جو اس بیٹی کو ملنے والا ہے تو وہ کیسا تحفہ ہوگا؟ اب آپ سوچئے کہ جہاں پیغمبر اسلام سے کہہ رہا ہے خدا سے کہہ دیجیے کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی زندگانی کیا ہے؟ قلیل ہے، کمتر ہے، تھوڑی ہے، لیکن جب بات تحفے کی آ جاتی ہے، جب بات دینے کی آ جاتی ہے، جب سامنے پیغمبر اسلام کی ذات نظر آتی ہے تو ان کو جو دینا ہے وہ ہمہ ہمی کے ساتھ، شان کے ساتھ، پورے وجدان فکر عقل کو بلند کر کے سوچیں، تب بھی سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ کیا عطا کیا ہے پیغمبر کو، جس کے لیے کہنا پڑا انا اعطیناک الکوثر، کہ فاطمہ بڑی ہے کائنات چھوٹی ہے، فاطمہ کے فضائل کبیر ہے، کثیر ہے، یہ کائنات بہت قلیل ہے، بہت چھوٹی ہے، اور وہ پیغمبر اسلام اس بیٹی کو جو تحفہ دے رہے ہوں گے، سوچئے وہ کتنا عظیم ہوگا، جس بیٹی کو اتنا سنوار کر، اتنا سجا کر اس انداز سے دیا گیا ہے کہ شاید وہ کہنا پڑا کہ یہ ایک مقصد معراج ہو بھی سکتا ہے، یہ ایک مقصد معراج ہو بھی سکتا ہے، نبی کا دل نہیں لگتا ہے فاطمہ سے بغیر، یہ ایک مقصد معراج ہو بھی سکتا ہے، نبی
का दिल नहीं लगता है फातिमा के बगैर, जिसको इतना अजीम शान बनाया है, उसके सामने जब तोहफा दिया जा रहा है तो वो उतना ही अजीम शान तोहफा होगा। लिहाजा पैगंबर इस्लाम को ये तोहफा अल्लाह ने दिया है, ये नेहला, ये हदिया, ये गिफ्ट, और पैगंबर इस्लाम ने अपनी उस बेटी को दिया है जो बिज़अतुर रसूल की मंजिल पर फाइज है, जो मक़दम और रिसाला की मंजिल पर फाइज है, जो शरीक कार रिसालत भी है, शरीक कार इमामत भी है, जो खातून जिना भी है, जो उम्मुल उलूम भी है, उम्मुल आइम्मा भी है। अल्लाह अकबर, यहाँ क्या फज़ाइल है शहजादी के, जो तसव्वुर में नहीं आ पाते कि कैसा वो तोहफा है और वो किस वक्त दिया है, किस तरह दिया है। क्योंकि ज़ाहिर है इनके यहाँ आदाब है ना, तोहफा देने के भी तरीके और तरीके होते हैं। उस तोहफे की अहमियत को मुझे और आपको बताने के लिए हमारी नाकदरी है ना कि हमने नहीं समझा कि ये कितना प्यारा तोहफा है जो आपके हाथों में है, ये कितना खूबसूरत जिक्र है जो हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। आज जब आपके हाथों में तस्बीह फातिमा तो ज़हरा है, ये तस्बीह जब आज से आप पढ़ेंगी तो आपके कानों में शहजादी की आवाज़ गूंजेगी, इसलिए कि इतनी प्यारी सदा आ रही है इस तोहफे से। वो तोहफा यही है, सुभान अल्लाह है, वल्हम्दुलिल्लाह है, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर। आपको मालूम है ये तोहफा मामूली तोहफा नहीं है जो हमारे जहन से नूर का फव्वारा जारी कर रहा है। आपको मालूम नहीं हुआ लेकिन मेरे जहन से पूछा, इसलिए कि ये नूर का फव्वारा जारी करने वाला तोहफा है, ये हमें नूर बना रहा है, ये नूरानियत अदा करने वाला हमारा मुश्किल कुशा तोहफा है। इसीलिए शहजादी दो आलम को दिया, और किस तरह दिया, किस वक्त दिया। क्योंकि शहजादी दो आलम की जिंदगी कैसी मजबूत जिंदगी है। हम और आप समझते हैं कि शहजादी सिर्फ घर के कामों में मशगूल है। शहजादी की घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ आपको मालूम है कि शहजादी पर कितनी भारी जिम्मेदारी है, शरीक कार रिसालत है, शरीक कार इमामत है। कुछ तो ऐसा काम है जो शहजादी कर रही है। वो कौन सा काम है कि जिस तरह ज़ैनब आली वक़ार सानिया ज़हरा दर्स दे रही हैं कूफा में, और वो आलिमा गैर मुअल्लिमा जिसके दर्स में आ रही हैं ख़वातीन और वो जॉब पर जॉब सीख रही हैं, इसी तरह से शहजादी दो आलम मदीने में दर्स दिया कर रही हैं। और वो दर्स के दिन है, जिस तरह पैगंबर की ज़िंदगी बड़ी ऑर्गेनाइज है, डिसिप्लिन है, मुनज़्ज़म है, इसी तरह शहजादी क्या कर रही हैं कि रोज़े हफ्ता जैसे शहजादी ने मुंतखब कर लिया है कि उस रोज़ आप अकायद की तालीम देंगे, रोज़े इतवार आप तफसीर का इल्म पढ़ा रहे हैं, रोज़े हफ्ता आप जैसे आपको जुमे का दिन नसीब है तो उस रोज़ आप अहकामात की तालीम दे रहे हैं। यानी शहजादी ने दिनों को तकसीम किया कि इस तरह ख़वातीन आती थी, न सिर्फ ख़वातीन बल्कि आपको मालूम है कि जो शहजादी के बहुत ही जो दर पर आने की जिनको खास खास असहाब हैं, जिनको इजाज़त है, पैगंबर मौजूद हैं, अमीरुल मोमिनीन मौजूद हैं, मगर जाबिर का दिल चाहता है कि शहजादी से सलमान का दिल बेताब होता है कि शहजादी से कुछ दुआ ले लें, शहजादी से कुछ सुन लें। इसीलिए हदीसे के साथ जो आज की शब की अजीम तरीन इबादत है जिसमें हम पढ़ते हैं रोयन फातिमा ज़हरा, और वो किससे रिवायत है, जाबिर ने शहजादी से सुना है, यानी डायरेक्टली जाकर सुना है। इसलिए कि मरकज़े तत्हीर, मरकज़े पंजतन शहजादी दो आलम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जात है। गुंजाइश किसी नापाक की जेरे किताब के देखो पांच ही तो हर्फ है तकदीर में, एक मोहम्मद एक अली एक फातिमा दो उनके नाम, आ गई इस्मत सिमट कर चादर तकदीर। जब वो जो किस्मत सिमटी तो मरकज शहजादी की जात पर आ गई कि फातिमा तो अबूहा वबायुहा वबनूहा जाकर वो भी पूछा करते हैं। इस सवाल जवाब में इस सारे इल्मी जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ घर की जिंदगी में आपने और हमने जिस जिंदगी में शहजादी को देख रहे हैं कि शहजादी घर के सारे काम कर रही है, मगर वो कितनी मुशक्कत के काम हैं कि उस जमाने में पानी को भी भरना है मश्क के जरिए से, उस जमाने में आटा भी घर में उनको पीसना है, उस चक्की का
इस्तेमाल करते हुए शहजादी को असहाबे सुफ़ा के लिए भी खाने का बंदोबस्त करना है। अमीरुल मोमिनीन घर में है तो वो घर के कामों में भी मददगार है, मगर आप और हम जो नारे भी बहुत बहुत लगाते हैं, हमें मालूम है कि वो खैबरी भी हैं, खंदकी भी हैं। तो जब वो कभी खैबर में चले गए हैं तो शहजादी घर की पूरी जिम्मेदारियों को संभाल रही है। जब वो कभी ज़ाते सिलासिल, जिसके फज़ाइल बहुत बहुत हैं कि सूरह आदियात अमीरुल मोमिनीन की शान में उस सवारी के फज़ाइल को अल्लाह बयान कर रहा है, जिस पर सवार होकर, जिस मरकब पर सवार होकर अली गए हैं, उसके फज़ाइल भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाह रहा है कि सूरह आदियात में नुमाया हो जाए। कभी अमीरुल मोमिनीन वहाँ हैं, कभी यमन है, कभी खैबर है, तो शहजादी की ज़िंदगी में और ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। तो जब एक रोज़ जाबिर ने आकर कहा, क्योंकि जाबिर घर के अंदर नहीं आ रहे, शहजादी को नहीं देखा है, मगर उस चक्की को तो देखा है जिसको शहजादी इस्तेमाल कर रही है, तो जाबिर ने उस चक्की पर लहू देखा शहजादी का, चूँकि हाथ जख्मी हो जाते थे, तो एक मरतबा आकर कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरा दिल रो रहा है, मैं तड़प रहा हूँ कि शहजादी के हाथ इतने जख्मी हैं कि मैंने उस चक्की पर लहू देखा है। तो आप सोचें कि पैगंबर इस्लाम तो दस्ते मुबारक फातिमा देख रहे हैं। अल्लामा अली रज़ी नकल में इसको बहुत बहुत प्यारी, और आज शब जुमा है, उनकी रूह को शाद करने के लिए उनको बहुत बहुत खुदा ने बुलंद मकाम अता फरमाया यकीनन, और उन्हीं की रूह को शाद करने के लिए इस जुमले को उनके पढ़ रही हूँ कि उन्होंने अपनी ज़बान में वो इरशाद फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने जब अमीरुल मोमिनीन के कहने पर शहजादी ने पैगंबर इस्लाम से खातिमा तलब की कि मुझे कुछ ऐसी मदद के लिए कनीज़ दे दीजिए कि घर के कामों में कुछ मदद हो जाए, तो शहजादी ने जाकर कहा नहीं, वो कह रहे कि बस शायद हाथ दिखा दिए होंगे। ये कहना बता रहा है कि शहजादी के अंदर वो लिहाज है, वो अदब है, वो एहतराम है, पैगंबर इस्लाम है, वो हया का दामन थामा हुआ है कि शहजादी कह भी नहीं रही कि मुझे एक खादिमा की ज़रूरत है, मुझे एक कनीज़ की ज़रूरत है, बस जाकर दस्ते मुबारक को दिखाया होगा तो पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि आपको तस्बीह चाहिए, वो जिक्र ना दे दूँ कि जो खादिमा से उससे भी बेहतर हो जो आप मांगने के लिए आई हैं, वो तस्बीह, वो अज़कार, वो जिक्र जो आप सब के हाथों में, और अल्हम्दुलिल्लाह आप बार बार उसको पढ़ती हैं, यही वो जिक्र है जो खुदावंद मुतआल की जानिब से शहजादी दो आलम को वो तोहफा, वो सहला, वो गिफ्ट, वो हदिया मिला कि जिसने मुझे और आपको भी नूरानी से नूरानी और फिर शहजादी को ये तस्बीह अता फरमाई कि आपको इस तस्बीह को पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है। अब आप सोचें कि इसमें थकावट के दूर करने का अंसर या लिंक कहाँ से नजर आता है कि अगर ये शहजादी दो आलम को इसलिए दी गई है कि आपकी दिन भर की थकावट को दूर कर देगी, आपको बशाशत अता करेगी, आप जिक्र अल्लाह जिक्रन कसीरा की मंजिल पर आपको सारा दिन जिक्र करती हैं, आप तो मुसम्मा कुरान है, वजूद कुरान है, खुद आपका वजूद जिक्र बन जाता है। लेकिन इसका लिंक क्या है, और जबकि इसकी तरतीब भी तस्बीहात अरबा की तरह से नहीं है, लेकिन इसमें एक राज रखा, और हमें और आपको जो शहजादी दो आलम की कनीज़ बनने कहते हुए भी बल्कि शर्म आती है, इसलिए कि जब हम कनीज़ फातिमा ज़हरा को देखते हैं जिनके मरातिब खुद इतने बुलंद नजर आते हैं, इतने अजीम नजर आते हैं, फिज़ा यानी क्रिस्टल क्लियर, इतनी उजली, इतनी साफ, इतनी निखरी, इतनी प्योर, ऐसी शख्सियत जिसको के फिज़ा कहा जाए, और यकीनन खादिमा फातिमा ज़हरा, कनीज़ फातिमा ज़हरा होने का मकाम और शरफ इसलिए भी उनको जचता है, सचता है कि आप आज देखें, हमें अपने मरहूमीन के पूरे पूरे अजदाद, हमारे पुराने ज़मानों में जो लोग थे उनके नाम नहीं मालूम, लेकिन हमें ये मालूम है कि फातिमा ज़हरा की कनीज़ का नाम फिज़ा, हमें ये मालूम है कि वो कहाँ तक हैं, हमें ये मालूम है कि उनके मरातिब क्या हैं, कि जब बोलती हैं तो कुरान बोलती हैं, जब गुफ्तगू करती हैं तो कुरान में करती हैं, इसलिए कि पहले अज़कार दिए, पहले शहजादी को तस्बीह अता की, और उसके बाद वो कनीज़ अता की जो तस्बीह के बराबर होने वाली थी, यानी इस मर्तबे की, इस बुलंदी पर जाकर इन अज़कार
बात की जहाँ वस्फ फिजा हमें नजर आ रहे हैं कि वो जचता है उनके साथ के नाम के साथ कि उनको कनीज फातिमा ज़हरा कहा जाए। हमें इससे कोई गरज नहीं है कि उनका रंग कैसा था, उनकी हाइट कैसी थी, वो बोलती कैसी जबान थी, किस कलर की थी। हमें तो ये मालूम है कि वो हम सर की, हम उम्र की शहजादी की, उस जमाने की थी और इतनी उम्र की थी, लेकिन उन्होंने कैसे अपने आप को अहले बैत के घरानों में शामिल किया, किस तरह अपने आप को जान लिया कि ये दरवाजा मामूली दरवाजा नहीं है, ये खासुल खासाने खुदा का दरवाजा है। इसलिए कि कॉपर से जब एक मरतबा उन्होंने सुना बनाया और जब पैगंबर इस्लाम जब अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि आप अगर कॉपर को और ज्यादा थोड़ा मोल्ड कर देती, पिघला देती तो इससे बेहतर बना सकती थी, तो हैरान हो गई कि इस घर में जहाँ 2 बर्तन है, एक तलवार है, उसके सिवा कुछ नहीं है। इनको तो सोना और चांदी बनाना भी आता है, लेकिन इनकी जिंदगी क्या है, बस रजा और रिजवाने शरीफ। इसीलिए इस तस्बीह का फायदा क्या दिया हमें और आपको, इस अज़कार में कैसे समेट दिया कि हमें दर्स दिया जो शहजादी से मोहब्बत करते हैं, जो यहाँ से तोहफा लेना चाहते हैं, जो फातिमा ज़हरा को मिशकात हिदायत मानकर अय्याम फातिमा ज़हरा से जुड़ना चाहते हैं, मुंसलिक होना चाहते हैं, उनको दर्स दे दिया कि वहदहू ला शरीक जानता है हमें और आपको कि हम किस हैसियत के लोग हैं, हमें और आपको कहाँ कहाँ क्या पढ़ना जरूरी है। तो इसीलिए तस्बीह को ऐसा सजा कर दिया, ऐसा सवाल कर दिया, इतने बशारतों के साथ दिया, इतनी खुशखबरियों के साथ दिया कि जब पढ़ो कहाँ से शुरू करो, अल्लाह अकबर। अल्लाह, अल्लाह की जात क्या है, बस कायनात में अल्लाह ही अल्लाह है। बाबा बुल्ले शाह ने कहा ना कि मैं हर्फ बोला तू होवे, मैं तुरा रामा तू होवे, मैं ना ही तू होवे। बस जिसको वो नजर आने लगता है फिर उसको कुछ नजर नहीं आता। इसीलिए अल्लाह अकबर से इब्तिदा हुई और इख्तिताम किस पर है, सुभान अल्लाह, अल्लाह पर। यानी हमारा मबदा, हमारा माद बस अल्लाह, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक। इसीलिए शहजादी की जिंदगी में क्या नजर आता है, बेवजहिल्लाह। सारी जिंदगी अगर उठना है तो अल्लाह के लिए, बैठना है तो अल्लाह के लिए, सदका और खैरात है तो अल्लाह के लिए, कोई अमल है तो अल्लाह के लिए, यहाँ तक के रोजा है तो अल्लाह के लिए, और खुशनूदी वहदहू ला शरीक के लिए सूरह मुबारक दहर जहाँ शुक्रिया अदा करता हुआ नजर आ रहा है अल्लाह के लिए। वजहिल्लाह। आज आपको मालूम है सूरह दहर का दिन भी है। शहजादी की 18 साल जिंदगी को ये 18 आया बयान कर रही है। रोजे जुमेरात और रोजे पीर शहजादी दो आलम के नाम पर इसको नमाज फजर में शामिल करने वाले के लिए बशारतें हैं, खुशखबरियां हैं, बेपना फजाइल उसको नसीब हो जाते हैं जो सूरह मुबारक दहर को अपना लेता है। क्यों? क्योंकि अर्श आजम से चला बहरे सखावत देखकर, अर्श आजम से चला बहरे सखावत देखकर दहर का सूरा बइज़्ज़ो शान नीचे आ गया। अब फातिमा ज़हरा के हाथों का हुनर तो देखिए, फातिमा ज़हरा के हाथों का हुनर तो देखिए। रोटियां ऊपर गई, कुरान नीचे आ और नमाज में क्या है, हम जितने भी जो चेंज करते हैं, जितने अरकान को जब क़याम कुऊद रुकू सुजूद, तो उसमें हम दरमियान में क्या कहते हैं, अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह की बड़ाई को, उसके अकबर होने को, अल्लाह यानी अल्लाह से जुड़ जाने को बयान करते हैं। और यहाँ पर सुभान अल्लाह पर इख्तिताम यानी नामे नामी है, इसमें आज़म जो कि है अल्लाह का, उसके ऊपर इख्तिताम रखा और उधर आवाज है अल्लाह अकबर से, यानी ये लिंक रखा कि तुम जब याद रखोगे कि मबदा माद अल्लाह की जात है, इब्तिदा से इंतहा तक, तो खुद बहुत सारे दिन की थकावट, सारा डिप्रेशन, सारी थकन, सारी टेंशन दूर हो जाएंगी। और यही आपको सूरह मुबारक दहर तोहफा दे रहा है कि सूरह मुबारक दहर का जो कारी होता है, जो तारीफ सूरह मुबारक दहर होता है, उसको क्या तोहफा मिलता है कि वो अगर
किसी दिमागी एतबार से किसी तरह डिस्टर्ब है, जो कि आजकल का ज़माना है कि कोविड-19 ने बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन दे दिया है, उनके अंदर नाउम्मीदी आ गई है। अगर कोई ले रहा है मेडिकेशन तो वो लेता रहे, वो छोड़ ना दे, लेकिन जो नहीं ले रहा, अगर सूरह मुबारक तहत को अपना लिया तो ये हर किस्म के डिप्रेशन को, हर किस्म के दिमागी एतबार से थकावट को, आपकी नाउम्मीदियों को दूर कर देता है। इतना एनर्जी देने वाला सूरा है, इतनी एनर्जी देता है, इतनी पॉजिटिविटी देता है, नेगेटिविटी को दूर कर देता है। हमेशा हमेशा के लिए आपको बेदार वक्तों में शुमार करके गाफिलों की फहरिस्त से नाम को काट देता है, बेपनाह फज़ाइल अता फरमाता है। और यही ये तस्बीहात अरबा का है कि जब आप इसको पूरे खुलूस के साथ, तो जब आपने अब इसको पढ़ रही हैं, आप हमेशा इसको पढ़ती रहती है, तो जब आप पढ़ें तो इसको इतनी अहमियत के साथ कि ये किसको दिया गया तोहफा है, किसने दिया है, किसको ये तोहफा, क्यों दिया है ये तोहफा, और इसका लिंक थकावट को दूर करने से क्या है। जब शहजादी तो आलम ने इसको पढ़ा, जब अमीरुल मोमिनीन के पास आई और आकर कहा कि बाबा ने मुझे एक जिक्र तोहफे में दिया है, एक हदिया मुझे मिला है, इतना बुलंद मर्तबा, तो पता है अमीरुल मोमिनीन बहुत खुश हुए। इरशाद फरमाया है सुभान अल्लाह, आपको वो जिक्र मिला है जो इतना अजीम है, जो कायनात का इतना अजीम शान जिक्र है, यानी वो जिक्र जो पैगंबर इस्लाम ने वहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दिया है, हजार नूरी सार, और फिर उस जिक्र को सजा कर यहाँ उसको दिया गया है जो ज़हरा है। ज़हरा जिसको कहते हैं नूर के जलवे को ज़हरा, यानी नूर को नूर दिया गया है, जलवे को जलवा दिया गया है, रोशनी को रोशनी दी गई है, दरख्शंदगी को दरख्शंदगी दी गई है, बशारत को बशारत तोहफे में दी गई है, तो क्यों ना वो मुबारका हो जाए। इसीलिए शहजादी तो आलम की ये बरकत रही, ये फैज़ रहा। और फिर सुनिए कि हमारे और आपके छठे इमाम सादिक़ आले मोहम्मद वो इसके फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं कि ये मुझे कितनी महबूब है। अहमद अलैहिस्सलाम को ये तस्वीर, ये शहजादी का गिफ्ट, ये तोहफा कितना महबूब है, इतना महबूब है, इतना महबूब है कि आप कह रहे हैं कि हजार मुस्तहबी नमाज से अफजल मुझे, महबूब मुझे ये तस्बीह है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ये तस्बीह मुझे ज़्यादा महबूब है। फिर आपने फरमाया कि किस तरह पढ़नी है, इसका सवाब क्या है। जब कोई समझ कर, सोच कर, खुलूस के साथ, इखलास के साथ, नीयत के साथ इसको पढ़ता है तो उसको सवाब पता है कितना मिलता है। एक एक दाने पर हजार हजार, गिनती में 100 है, सवाब में अलग अलग। लैलतुल क़द्र की तस्बीह है, लैलतुल मुबारका की तस्बीह है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम, हजार रातों से अफजल है ना। यहाँ वो हजार हजार सवाब में हजार हजार है। और फिर इसके फायदे क्या हैं। जब आप कहीं जा रही हैं, किसी जॉब का इंटरव्यू है, किसी प्रपोजल को लेकर जा रही हैं, किसी मकसद से जा रही हैं, मकसद भी याद रहे, मिशन भी याद रहे, हदफ भी याद रहे, और आपने इस तस्बीह को शहजादी को हदिया कर दिया है, हजरत हुज्जत को गिफ्ट कर दिया है, नियत करके क़ुर्बतन इलल्लाह ताला। तो क्या होगा, जिस तरह वुज़ू को रोशनी है ना, वुज़ू की मन्नत कितनी प्यारी मन्नत है, छोटी सी मन्नत है। और हम चूँकि हमें अहले बैत कह रहे हैं कि मुख्तसर छोटी चीज़ों में से बड़े बड़े फ़ायदे निकालना, हम चाह रहे हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ें मिले ताकि मुश्किल और हम सफ़े पलट के देखते रहे कि ये कब खत्म होगी। नहीं, छोटी छोटी मन्नतें। मैं अक्सर अपने बच्चों से कहती हूँ कि सूरह मुबारक अलहम्द हज़रत हुज्जत को गिफ्ट करने की मन्नत मान ली जाए। रोज़ा जो कि बहुत ही खूबसूरत इबादत है, मन्नत शहजादी दो आलम के हुजूर में हदिया। फिर आप सबसे खूबसूरत मन्नत कभी मान कर देखें, कितना लुत्फ़ महसूस होता है कि कोई वुज़ू की मन्नत माने और बदन अल्लाह ताला, तो आपका काम फौरन हो जाता है। इसलिए कि वुज़ू क्या है, वुज़ू नूर है। वुज़ू खुद
मुश्किल कुशा बन जाता है। इसी तरह ये तस्बीह है शहजादी दो आलम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह कि जब आप घर से नियत करके जा रही हैं कि मैं इसको कुर्बतन अल्लाह ताला शहजादी के वो तेरी बारगाह में शफी बना रही हूँ, मुश्किल कुशा बना रही हूँ। वो शाफिया भी हैं, मुश्किल कुशा भी हैं, वो उम्मुल उलूम भी हैं, वो हल्ले मुश्किलात भी हैं। और सिर्फ हमारी नहीं, जिनसे तवस्सुल करते हो आइमा अलैहिस्सलाम, जिनसे तवस्सुल करते हो आइमा अलैहिस्सलाम, वो वजूद फातिमा ज़हरा सलाम और आज आपको मालूम है ना कहाँ जाने की रात है? आज अपने कल्ब को, अपनी रूह को, अपनी आँख को हरम अबू अब्दुल्लाह पहुँचाने की शर्त है। आज हम एक एतबार से सेंटर में हैं, अज़ादारी में हैं, अज़ाखाने में हैं, या घरों में भी मुसल्ला मजलिस पर हैं, तब भी इस दरबार में से उस मंजर को अपनी आंखों में सजाने के लिए चलते हैं जहाँ जड़ी है हजरत अबू अब्दुल्लाह हुसैन। और आपको मालूम है कि शब जुमा में कौन कौन अबू अब्दुल्लाह की ज़ियारत के लिए आता है? खुद फातिमा ज़हरा। जहाँ अंबिया अलैहिस्सलाम आते हैं, वहीं शब जुमा में शहजादी दो आलम अपने इस बेटे की ज़ियारत के लिए करबला पहुँच जाती हैं। और हम तो बहुत बेचैन हैं आका, इसलिए कि चाहते हैं कि ज़रीए मुक़द्दस से लिपट कर एक मर्तबा आपकी वालिदा गिरामी की लम्बी हालत का पुरसा, उस वजूद का पुरसा दे सके जो रोज बरोज पिघलता जा रहा था। और इस तरह पिघल रहा था कि 2 दिन के बाद भी मदीने की ख़वातीन आती थी ना, तो शहजादी और ज़्यादा कमज़ोर मिलती थी। तो वो पूछती थी कि बीबी आपको क्या बीमारी है, क्या मर्ज है कि आप दिन ब दिन घुलती चली जा रही हैं, पिघलती चली जा रही हैं? तो शहजादी कहती थी बाबा की जुआ, उम्मत के मसाइल, अली की मजबूरी और उस दर की गुर्बत मुझे पिघला रही है जिस पर बाबा को सलाम कहा करते थे और उनके जाने के बाद 40 लोगों का हुजूम उस दर पर। ये शहजादी की मुसीबत थी। अल्लामा मजलिसी कहते हैं कि एक मर्तबा रोज़ाए अबू अब्दुल्लाह में जाने का शरफ उनको हासिल हुआ और उनकी खिदमात ऐसी हैं कि अजब नहीं कि आका उनको ज़ियारत कराएं। ज़रीए मुक़द्दस में ज़ियारत अबू अब्दुल्लाह हुई, आका ने करीब बुलाया और कहा कि मजलिसी अभी 1,24,000 अंबिया मेरी ज़ियारत को आते हैं। शब जुमा 70,000 मलाइका हर घंटे में ज़ियारत अबू अब्दुल्लाह के लिए आते हैं। कहा कि मजलिसी सब आएंगे, आप पानी लेकर खड़े हो जाइए। जब अंबिया आते जाएं आप उनको सैराब करें। अल्लाह अकबर। आप तसव्वुर तो कीजिए, जिसको 3 दिन का भूखा और प्यासा ज़िब्हा किया गया था, उसके दरबार से, उसकी सरजमीन से कोई प्यासा नहीं आता। हत्ता ये कि अंबिया अलैहिस्सलाम भी सैराब होकर वहाँ से पलट गए। एक मर्तबा कहा, मजलिसी कहते हैं कि अंबिया आते रहे, मैं सैराब करता रहा, यहाँ तक कि अबू अब्दुल्लाह ने मुझसे कहा कि मजलिसी अब यहाँ से दूर चले जाओ, अब यहाँ से दूर चले जाइए। मैंने कहा आका, मैं आपसे जुदा नहीं होना चाहता, मैं दूर जाना नहीं चाहता। कहा नहीं, कुछ देर के लिए दूर चले जाइए, इसलिए कि अब मेरी माँ फातिमा ज़हरा, मेरी माँ फातिमा ज़हरा मेरी ज़ियारत के
لیا ہے. مجلسی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو چھپا لیا, میں دور چلا گیا, مجھے محسوس ہوا کہ کوئی نور ہے جو ذریعہ مقدس ہے عطا تعالیٰ نے امام شہزادی کی محبت حسین سے عجیب تر ہے. نہیں معلوم شہزادی اپنے اس لال سے کس طرح اظہار غم کرتی ہے, اس کے مصائب پر کیا کہہ کر ماتم کرتی ہے. بس ہمیں یہ معلوم ہے کہ یقیناً شہزادی یہ کہتی ہے واہ مظلومہ, واہ مصیبتہ, واہ غربتہ, جس کو چکیاں پیس کر پالا تھا. یہ شہزادی کی مصیبت ہے. ایک مرتبہ مجلسی کہتے ہیں کہ جب نور تھما مجھے آقا نے واپس بلا لیا, میں ان کے حکم پر آیا. کچھ دیر نہ گزری کہ اب آقا نے حکم دیا مجلسی اب اتنی دور چلے جاؤ, اتنی دور چلے جاؤ کہ تمہارا سایہ بھی یہاں نظر آنے نہ پائے. میں نے کہا آقا مجھے بتائیے کہ اب کون آ رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ میری بہن زینب جو شام سے میری زیارت کے لیے آ رہی ہے. مجھے نہیں معلوم حضرت امام اب زینب جب ابو عبداللہ کی زیارت کے لیے شب جمعہ میں آتی ہے کس کے مصائب کا بیان کرتی ہے. شب جمعہ یاد علی اکبر کی شب ہے نا. آج علی اکبر کو ان کا واسطہ دے کر نماز عشاء کے بعد جو مانگا جائے وہ ملتا ہے نا. اور علی اکبر کون ہے؟ روایت کہتی ہے کہ علی اکبر کی آواز پر حسین گرتے تھے اور سنبھلتے تھے. حسین گرتے تھے اور سنبھلتے تھے. لیکن ذرا مدینے چلیے, ایک منظر اور ایسا نظر آتا ہے کہ جہاں جب علی فاطمہ زہرا کو دفن کر کے پلٹ رہے تھے تو کبھی گرتے تھے کبھی سنبھلتے تھے. اس لیے کہ کائنات جس کے نام سے کانپ جاتی ہے وہ وجود کانپ رہا تھا جب دفن فاطمہ زہرا ہو رہا تھا. اس لیے کہ جان رخصت ہو رہی تھی, روح رخصت ہو رہی تھی. شب جمعہ میں اپنے آپ کو ہم نے اس حرم میں پہنچایا ہے, اپنی حاجات کے ساتھ پہنچایا ہے نا, اس فاطمہ زہرا کی یاد کے ساتھ کہ ایک روز آ کر کہا تھا کہ بابا آج پورا دن ہو گیا, جتنی مرتبہ مصلی عبادت پر پہنچی میں نے عجیب آواز سنی ہے. جب سے یہ نور میرے شکم میں ہے جو حسین کا نور ہے, لیکن جب آواز آتی ہے جب مصلی پر طلوع ہوتی ہوں کبھی کہتا ہے یا اماں انا بلدک الوتشام. جب دوسرا وقت آیا تو آواز آ گئی یا اماں انا بلدک الاوریان. جب تیسری نماز کا وقت آیا اور میں مصلی پر طلوع ہوئی آواز آ گئی یا اماں انا بلدک السحقان. بابا مجھے بتائیے تعبیر کیا ہے؟ یہ مولود جو میرے شکم میں ہے یہ تسبیح کہتا ہے, یہ اللہ اکبر کہتا ہے. ضرور عجب نہیں ہے کہ ان کے اس جملوں میں کوئی راز ہو. پیغمبر نے گریہ کیا, ایک مرتبہ علی کو اپنے قریب بلایا, کہا کہ وہ جملوں کے معنی ایسے ہیں کہ آپ برداشت نہ کر سکیں گے, بس اتنا سن لیجئے جو پہلا جملہ ہے یا اماں انا بلدک الوتشام, میں پیاسا ہوں. یہ وہ ہے جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کے لیے گھر پر ذبح کیا جائے. ماں ہے نا فاطمہ زہرا, کس طرح ماں نے برداشت کیا, لیکن کہا بابا مجھے دوسرے جملے کے معنی سمجھا دیجیے. کہا کہ جو دوسرا جملہ ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے یا اماں انا بلدک الاوریان. تجھے معلوم ہے یہ بیٹا تیرا 3 دن بے گورو کفن کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے گھر پر جس کا لاشا 3 دن تک بے گورو کفن رہنے والا. شہزادی بے ہوش ہو گئی. جب افاقہ ہوا کہا بابا مجھے تیسرے جملے کا مطلب سمجھا دیجیے. اب پیغمبر اسلام نے علی کو قریب بلایا, کہا کہ تیسرا جملہ اتنا سخت ہے کہ فاطمہ زہرا برداشت نہ کر سکیں گی. یا علی آپ بازو تھام لیجیے. علی نے بازو تھاما فاطمہ زہرا کا. شہزادی سننا چاہ رہی ہے کہ وہ کیا معنی ہے, وہ کیا تعبیر ہے یا اماں انا بلدک السحقان. جیسے ہی یہ کہا کہ فاطمہ زہرا تیرا یہ وہ لال ہے کہ سب لاشیں اٹھا لیے جائیں گے اور گھوڑوں کی نال بندی کا حکم دے دیا جائے گا اور دامادی کی زد پڑنے کے گھر پر اور ایک تیرے لال کا لاشا ہوگا جس کا جسم لیں گے گھر پر ریزہ ریزہ کر کے. ہاں کہ کربلا میں اس طرح
पूछा कि बाबा क्या मैं उस वक्त होंगी? कहा कि नहीं तुम ना होंगी। कहा कि अली होंगे। कहा नहीं अली भी नहीं होंगे। कहा बाबा फिर कौन होगा? कहा घबराना नहीं, खुदा इस कौम को पैदा करेगा कि वो तेरे लाल का मातम करेंगे। वाह गुरबता, वाह मस्जिद वाह कहकर, वाह हुसैना की सदा को बुलंद करें। हमारे अमान को खुदा मेरा इस काबिल बना दे कि इस शब जुमा में इस बाबरकत शब में खुदा मेरा उनके ज़हूर में ताजील बनाया और हमें इस काबिल बनाया कि उनके लश्कर में शामिल होने का शौक